Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies and as well as you are good. So, we have already completed our first lesson, and today we are going to start our second chapter, which is the operating system in Windows 10. तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो क्या होता है एक इंटरफेस होता है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर सिस्टम। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है यूजर को टू गेट इंटरैक्टेड विद द सिस्टम। So without wasting any time, let's dive into the chapter. So in this chapter, we are going to learn few topics which are operating system, Microsoft Windows 10, components of Windows 10, working on desktop screen, changing desktop background, and screen saver. So first up, we have activity which says a librarian is the interface between the student and the library. जो librarian होता है वो कौन होता है? एक interface होता है between the students and the library. So what we have to do is here we have to help our friend to reach to the library. तो हमें अपने friend की help करनी है to reach there. So we will do that. Okay. So we have reached there. Now moving forward, what is an operating system? Operating system क्या होता है? An operating system or OS is a special program that makes your computer work. When we give an instruction through a software, it is passed on the OS, then uses the instruction and determines how the hardware and software of a computer should be utilized for the best possible way. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे कंप्यूटर को वर्क करने में मदद करता है। जब भी हमको इंस्ट्रक्शन देते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर तो वो एक ओएस के थ्रू पास आउट होता है। फिर वो इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन करता है कि कैसे हमारा जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है वो डिटरमाइन करता है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है हमारे कंप्यूटर का उसको कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। इट कंट्रोल्स ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ये हमारे सारे के सारे डिवाइसेस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड है उन्हें कंट्रोल करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ओएस इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। Some of the other examples of operating system are Linux, Unix, Android, and Solaris. Famous inventor, Microsoft was founded by William Henry Gates or Bill Gates and Paul Allen in April 4, 1975. Now what are Windows 10? Windows 10 क्या है? It is the most popular operating system developed by Microsoft. ये एक बहुत popular operating system है जिसको किसने develop किया था? Microsoft ने. It is a GUI, graphical user interface based operating system in which pictures, images, icons and menus are used to give commands. जिसके अंदर हम pictures, images और icons या फिर menus को use करते हैं commands को देने के लिए. इट इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। ये एक ऐसा स्पेशल प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करता है। देयर हैव बीन डिफरेंट वर्जन ऑफ विंडोज लाइक विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, 8, 10 and recently launched Windows 11. In this chapter, we will study about Windows 10. Windows 10 has been designed to be used with multiple devices. Windows 10 को हमने डिजाइन किया था ताकि हम उसे मल्टीपल डिवाइसेस के साथ यूज कर सके इंक्लूडिंग डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर की स्टार्टिंग या फिर रीस्टार्टिंग के प्रोसेस को हम बूटिंग बोलते हैं। When the computer is switched on, जब भी हमारा कंप्यूटर स्विच ऑन होता है द प्रोसेस ऑफ बूटिंग इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। और उस टाइम पे जो प्रोसेस होता है बूटिंग का उसे हम बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। द प्रोसेस टू रीस्टार्ट अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन इज कॉल्ड वर्म बूटिंग। और अगर हमारा कंप्यूटर ऑलरेडी चल रहा है एंड वी आर रीस्टार्टिंग इट तो उसे हम बोलते हैं वर्म बूटिंग। Now, what are the components of Windows 10? Windows 10 components क्या है? The Windows 10 desktop has different components. हमारे Windows 10 के डेस्कटॉप में बहुत सारे different components हैं. Let us learn about each of them one by one. तो हमें यहाँ पे क्या क्या मिलता है? Left pane of start menu, right pane of start menu, डेस्कटॉप आइकन्स मिलते हैं हमें, डेस्कटॉप स्क्रीन मिलती है, शो डेस्कटॉप बटन, नोटिफिकेशन एरिया, टास्क बार, ओपन प्रोग्राम्स, टास्क व्यू, सर्च बॉक्स और स्टार्ट बटन। तो ये सब हमारे डेस्कटॉप विंडो के कंपोनेंट्स हैं।
डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप इज द मेन स्क्रीन दैट वी सी आफ्टर टर्निंग ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर को टर्न ऑन करने के बाद में जो मेन स्क्रीन हमें दिखती है वो हमारा डेस्कटॉप है। Like the top of an actual desk, it serves as a surface for our work. The desktop has many components. Let us learn about them one by one. तो पहले हमें मिल जाते हैं आइकन्स। द स्मॉल पिक्चर्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। जो स्मॉल पिक्चर्स इस तरीके की हमारे डेस्कटॉप पे प्रेजेंट होती है उन्हें हम आइकन्स बोलते हैं। ईच आइकन रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम, फाइल, फोल्डर और शॉर्टकट। द मोस्ट कॉमनली सीन आइकन्स आर दिस पीसी, रिसाइकिल बिन, न्यू फोल्डर, एटसेट्रा। Taskbar. Taskbar is a horizontal bar at the bottom of the desktop. This bar allows you to see what programs are running and what programs you can access easily by clicking on that icon. It has a start button, open programs, notification area, and show desktop option. Start button. The start button is found on the left side of the taskbar. Taskbar की left side में हमें क्या मिल जाता है? अपना start button मिल जाता है. Clicking on the start button opens the start menu. All the programs and settings can be accessed from here. Start menu has two panes. Start menu के यहाँ पे दो panes होते हैं. The left pane तो क्या डिस्प्ले करता है? लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स जिनको हम एप्स बोलते हैं, या और जो राइट पेन है वो क्या शो करता है? एप्लीकेशन आइकन्स को इन द फॉर्म ऑफ टाइल्स। प्रेस विंडोज की ऑन द कीबोर्ड टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए विंडोज की को भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे। Cortana. It is the immediate right to the start button lies the AI bot which can search for anything that is used for typed in and take voice commands. तो हमारे स्टार्ट बटन के राइट पे एक इमीडिएट ही बटन हमें मिल जाता है, वो जो एक एआई बॉट है जिसकी मदद से हम सर्च कर सकते हैं किसी भी चीज को, या फिर हम वॉइस कमांड भी प्रोवाइड करा सकते हैं। ओपन प्रोग्राम्स। ओपन प्रोग्राम्स शो करते हैं नंबर ऑफ प्रोग्राम्स या फिर फाइल्स जिन्हें हमने करंटली ओपन किया है। These programs can be single clicked to open, और इन प्रोग्राम्स को हम सिंगल क्लिक की हेल्प से भी ओपन कर सकते हैं। When a program is active, जब भी हमारा प्रोग्राम एक्टिव होता है, then it has a lighter shade, तब उसका लाइटर शेड होता है with a bar below it. When we click on the taskbar button to go back and forth between opened items. नोटिफिकेशन एरिया क्या है? ये प्रेजेंट होता है राइट साइड में ऑफ आर टास्क बार, और ये इसको हम सिस्टम ट्रे भी बोलते हैं। नोटिफिकेशन एरिया को हम सिस्टम ट्रे भी बोलते हैं। ये डिस्प्ले करता है प्रोग्राम्स रनिंग इन द बैकग्राउंड, द टाइम एंड डेट, यानी कि जो भी हमारे प्रोग्राम्स बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं ये उन्हें डिस्प्ले करता है, एज वेल एज टाइम और डेट भी हमें बताता है। शो डेस्कटॉप। दिस फीचर हाइड्स ऑल विजिबल विंडोज। शो डेस्कटॉप क्या करता है? सारी की सारी विजिबल विंडोज को हाइड कर देता है और अलाउ करता है यूजर को टू व्यू द फुल डेस्कटॉप, की जो यूजर है वो पूरे के पूरे डेस्कटॉप को देख सके। टास्क व्यू। टास्क व्यू बटन अलाउज अ यूजर टू क्विकली लोकेट एन ओपन विंडो, यानी कि किसी भी ओपन विंडो को क्विकली लोकेट करने के लिए हम टास्क व्यू का यूज करते हैं। हाइड ऑल विंडोज एंड शो द डेस्कटॉप। ये भी सारे विंडोज को हाइड कर देता है और डेस्कटॉप को शो करता है। विंडो की प्लस टैब की को जब हम प्रेस करेंगे तो हमारा टास्क व्यू ओपन हो सकता है। वर्किंग ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप स्क्रीन पे वर्क कैसे करते हैं? सिलेक्टिंग और डिससिलेक्टिंग एन आइकन। टू सिलेक्ट एन आइकन क्लिक ऑन इट। किसी भी आइकन को सिलेक्ट करने के लिए हम उस पर क्लिक करेंगे, द आइकन विल बी हाईलाइटेड, तो इस तरीके से जो आइकन है वो हाईलाइट हो जाएगा। टू डिससेलेक्ट एन आइकन, अपने आइकन को डिससेलेक्ट करने के लिए हम कहीं पे भी क्लिक कर सकते हैं, एनीवे अवे फ्रॉम एनीवेयर अवे फ्रॉम द आइकन, दिस आइकन विल नॉट बी हाईलाइटेड एनीमोर, फिर वो जो आइकन है वो हाईलाइटेड नहीं होगा। Selecting adjacent and non-adjacent icons. Adjacent icons. Left click on the first icon to be selected. हम अपने selected icon जिसको भी हमें select करना है उस पर हम left click करेंगे. Then hold down the shift key and click on the last icon to be selected. फिर हम क्या करेंगे? shift key को press करेंगे और हम उस icon पे last icon पे जाके जिसे हमें last पे select करना है उस पे click कर देंगे और फिर शिफ्ट की रिलीज कर देंगे, तो जो भी एडजेसेंट आइटम्स थे वो क्या हो जाएंगे? सिलेक्ट हो जाएंगे। बट अगर हमें नॉन एडजेसेंट को सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे? होल्ड डाउन द कंट्रोल की को हम होल्ड करके रखेंगे, क्लिक वन बाय वन ऑन ईच ऑफ द आइटम्स टू बी सिलेक्टेड, और एक एक करके उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें सिलेक्ट करना है। दिस वे यू कैन सिलेक्ट नॉन एडजेसेंट आइटम्स, और इस तरीके से हम नॉन एडजेसेंट आइटम्स को भी एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं।
स्टार्टिंग एन ऐप, यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इन विंडोज 10 देयर आर फॉलोइंग मेथड्स टू स्टार्ट एन ऐप। In this example, we will open an app Word 2016 by using these methods. हम यहाँ पे Word 2016 को open करेंगे using the start menu tiles. Click on the start button to open start menu. हमने start button पे click करा जिससे हमें क्या मिल गया, start menu मिल गया। Display tiles for commonly used apps. Right side पे हमें commonly used applications मिलेंगी। To see more tiles, you can use the scroll bar. और टाइल्स को देखने के लिए हम स्क्रॉल बार का यूज कर सकते हैं। क्लिक ऑन ऐप हियर वर्ड 2016 यू वांट टू स्टार्ट। अब यहाँ पे वर्ड 2016 पे क्लिक कर सकते हैं जिससे हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। यूजिंग ऑल ऐप लिस्ट, अगर हम ऐप की लिस्ट को यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। सिमिलरली हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू को ओपन करा। फिर हम इस बार लेफ्ट साइड में देखेंगे जो हमें एप्लीकेशन की लिस्ट मिली हुई है जो हमारे डेस्कटॉप में इंस्टॉल्ड है, वहां से हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करके क्लिक ऑन द आइकन ऑफ द ऐप यू वांट टू ओपन, द ऐप स्टार्ट्स। हमें यहाँ वर्ड 2016 मिलेगा तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। नाउ यूजिंग डबल क्लिक को यूज करके हम कैसे कर सकते हैं, तो ओपन एन एप्लीकेशन और अ प्रोग्राम हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो जिसपे हमारे पास स्टेप 1 क्या होगा, प्लेस द पॉइंटर ऑन द आइकन ऑफ अ प्रोग्राम। हमें अपने पॉइंटर को लेके जाना है आइकन पे, then double click on it, the application opens on the screen. Now using search box, you can also open an app using a search box. Windows recognizes the application programs only by their file names. Therefore, you can use the search box to run a search on the file name if you know it. Click inside the search box of the taskbar and type the app name you want to open. हमें क्या करना है, सर्च बार में टाइप करना है नेम उस एप्लीकेशन का जिसे भी हम यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं। एज यू स्टार्ट टाइपिंग, विंडो डिस्प्लेज ऑल एप्स विद द नेम दैट इंक्लूड योर सर्च टेक्स्ट। और जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे ना तो यहाँ पे सारे वो एप्लीकेशंस आ जाएंगे जो उस टेक्स्ट को कंटेन करते होंगे। इफ यू सी द ऐप यू वांट देन क्लिक ऑन इट, द ऐप स्टार्ट्स। In this example we have selected Word 2016. Here we have an activity which says लिस्ट एनी 5 आइकन्स दैट यू सी ऑन योर डेस्कटॉप। हमें ऐसे 5 आइकन्स को लिस्ट करना है जिन्हें हम अपने डेस्कटॉप पे इजीली देख पाते हैं। लाइक फर्स्ट अप वी कैन राइट हियर रिसाइकिल बिन, वी कैन राइट दिस पीसी और दिस कंप्यूटर। नेक्स्ट अप वी कैन राइट हियर न्यू फोल्डर, माइक्रोसॉफ्ट एज, या फिर जो भी सर्च इंजन हमारे पास है। और हमने कोई भी एक नया फोल्डर कुछ क्रिएट कर रखा हो या कोई एप्लीकेशन डाउनलोड की हो तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक वी कैन राइट हियर एडोब फोटोशॉप, जो भी एप्लीकेशन हमने कुछ भी इंस्टॉल करी हो तो वो हम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड, हम अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे। डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज एन इमेज दैट अपीयर्स एट द बैक ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन, इट ऑल्सो नोन एज वॉलपेपर। एनी पिक्चर सेव्ड इन कंप्यूटर कैन बी सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। कोई भी पिक्चर जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव है उसे हम सेट कर सकते हैं एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। We can change our desktop background by following these steps. Step 1. Right click on the blank area on the desktop. We will get a shortcut menu or context menu. Step 2. From the menu, click on the personalize option. हमें वहां से personalize option पे click करना है। The personalization window will appear. हमें एक personalization window मिलेगी जहां से we have to click on background option in the left pane, जिसमें से हमें background option पे click करना है from the left pane. Click on the picture that is to be used for desktop background in the right pane or click. हमें राइट पेन में से क्या करना है, अपनी पिक्चर को जो भी हम अपने बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है, या फिर हम ब्राउज का भी यूज कर सकते हैं टू सर्च न्यू फ्रॉम द इंटरनेट। देन a preview for the selected picture will appear. एक preview हमें मिलेगा for the selected picture जो भी हम select करेंगे। that particular picture will become our desktop background और वो particular picture हमारे desktop का background set हो जाएगी। Then next is screensaver. A screensaver is a computer program that activates when your computer is inactive for a set amount of time. यानी कि जब हमारा कंप्यूटर थोड़ा inactive हो जाता है
कोई किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो हम स्क्रीन सेवर का यूज करते हैं. विंडोज कम्स विद सेवरल स्क्रीन सेवर्स. वी कैन ऑल्सो क्रिएट आवर ओन स्क्रीन सेवर फ्रॉम पर्सनल पिक्चर्स सेव्ड ऑन आवर कंप्यूटर. हम अपने आप भी अपने लिए स्क्रीन सेवर क्रिएट कर सकते हैं by using the pictures which are saved in our computer. Also screen savers can be downloaded from the web, और हम उन्हें वेब से भी डाउनलोड कर सकते हैं. Setting up the screensaver. To set up a screensaver, the steps are given below. Step 1. Right click on the blank area on the desktop. We will get a context menu. From the menu, click on the personalize option. The personalization window will appear. Again, हमें personalization window को खोलना है. Click on the lock screen option in the left pane. हम left pane से lock screen option पे click करेंगे and scroll down the lock screen settings. फिर हम lock screen settings को scroll करेंगे. From there, click on screen saver settings. हम यहाँ से screen saver settings पे click करेंगे. Screen saver setting dialog box appear. हमें एक ऐसा dialog box मिलेगा. Select a screen saver from the screen saver drop down list. हमें जो screen saver drop down list है, यहाँ से हम एक पर्टिकुलर ऑप्शन चूज करेंगे. एज वी मेक सिलेक्शन, वी कैन सी द प्रीव्यू ऑफ द डेस्कटॉप. हम यहाँ पे डेस्कटॉप का प्रीव्यू देख सकते हैं. इन द वेट बॉक्स वी कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ मिनट्स द सिस्टम शुड रिमेन आइडल. हम यहाँ पे वेट ऑप्शन में लिख सकते हैं कि अबाउट एट व्हाट टाइम, एक आइडियल टाइम जिस तक के लिए हमारे सिस्टम को वेट करना है बिफोर द स्क्रीन सेवर स्टार्ट. इट इज 1 minute here. यहाँ पे हमने उसको 1 minute किया हुआ है. क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन. अप्लाई पे क्लिक करके हमें किस पे क्लिक कर देना है? ओके बटन पे क्लिक कर देना है. नाउ विंडोज 10 विल स्टार्ट द स्क्रीन सेवर आफ्टर द सिस्टम रिमेन्स आइडल फॉर स्पेसिफाइड टाइम. यानी कि जो विंडोज 10 है वो स्टार्ट हो जाएगी, वो स्क्रीन सेवर को स्टार्ट कर देगी. कब? जब हमारा जो सिस्टम है आइडल रहेगा फॉर स्पेसिफिक टाइम के लिए, उसके बाद में. टू स्टॉप अ स्क्रीन सेवर एंड रिटर्न टू द डेस्कटॉप, मूव द माउस और प्रेस एनी की. अगर हमें स्क्रीन सेवर को स्टॉप करना है या फिर रिटर्न होना है अपने डेस्कटॉप पे, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने माउस को मूव करा सकते हैं या फिर हम किसी भी की को प्रेस कर सकते हैं. We have one question which says, what is the difference between desktop background and screensaver? तो डेस्कटॉप बैकग्राउंड और स्क्रीन सेवर में क्या डिफरेंस है? जो हमारा डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, इट इज जस्ट अ पिक्चर और स्टिल इमेज. लेकिन जो स्क्रीन सेवर होता है उसमें वी हैव मोशंस आल्सो, या फिर हमारे पास हम उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए चूज कर सकते हैं. उसमें हम टाइम्स की सेटिंग कर सकते हैं जो हम वॉलपेपर के साथ नहीं कर सकते. There is a computer etiquette which says always use a genuine operating system. हमें हमेशा एक genuine operating system का यूज करना चाहिए. The pirated one can damage your computer and make you in trouble for legal actions against you. अगर हम एक illegal सॉफ्टवेयर का या फिर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं, तो इट कैन टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट अ यूजर ऑल्सो. Let's take a quick recap of the chapter. Operating system is an interface between the user and the computer. Windows 10 is an operating system developed by Microsoft for personal use. Desktop is the main screen that we see after starting the computer. Desktop background is an image that appears at the back of the desktop screen. The screensaver is a computer program that activates when your computer is inactive for a set of amount of time. Let's do the exercise. Dash is a popular operating system from Microsoft. तो कौन सा एक पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट? इट इज विंडोज 10. The full form of GUI is graphical user interface. The start button is located on the start button. कहाँ पे located होता है? टास्क बार, स्टेटस बार और टाइटल बार. तो टास्क बार. Small picture present on the desktop are called icon. Which option do you click to change the desktop background? तो desktop background को change करने के लिए हम किस पे click करते हैं? Personalize option पे. True false. An operating system is a special program that makes your computer work. True. Task view allows you to quickly move within your open windows. True. Taskbar is a long horizontal bar at the top of the desktop. False, because it is present on the bottom of the desktop. You can open an app using the search box. True. Screensaver activates when your computer is active for a set of time. False. जब हमारा कंप्यूटर inactive होता है तब हम स्क्रीन सेवर का यूज करते हैं. नेक्स्ट अप इज fill in the blanks.
A computer cannot operate without an operating system. Start button is a part of dash on the screen. तो start button किसका part है? Task bar. Dash is the main screen that we see after turning on the computer desktop. Dash is the background picture on the desktop wallpaper. Dash is present at the right side of the taskbar notification area. So students, this was your complete chapter about the operating system. I hope it is clear to you. To revise the complete chapter and also learn and revise the exercises. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.